ینگ جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں, مختلف طریقوں سے ہمیں وائرل ہوتے بھی نظر آتے ہیں. اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے تھے, کہ ان کے اشارے پر یہ وہاں پر گئے تھے, اور کیا کیا جو ہے وہ گل کھلا رہے تھے. پارٹی بالکل نہیں ہے, یہ ایک تحریک کا اعلان کیا, ایک تحریک کا قیام کیا, پارٹی کا قیام بالکل نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اس تحریک میں اقرار الحسن از نو بڈی. کیوں چلے گی؟ بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر ہی کیوں آئے گی؟ نواز شریف کے بعد مریم نواز صاحبہ ہی کیوں آئیں گی؟ یہ سوالات ہیں کہ نوجوانوں کا حق ہے وہ ایک پارٹی بنائیں. یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیراشوٹرز ہمیشہ پارٹیوں میں نظر آتے ہیں, ایک مفرل کسی کو پہنا دیا اور آپ پارٹی میں آگے. آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, آپ نے اقرار الحسن صاحب کی پریس کلب میں ہونے والی پریس کانفرنس دیکھی, جہاں پر وہ بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے اعلانات کر رہے تھے, مگر ان کے ساتھ ایک شخص بہت نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا. اور بعض دفعہ تو وہ اقرار صاحب کا جو مائک ہے وہ اپنی طرف کھینچ کے بات کرتا تھا, اور بعض دفعہ وہ مختلف لوگوں کو اشارے کر رہا تھا. اور جتنی بھی تصویریں وائرل ہوئی ہیں اس پریس کانفرنس کی, اس شخص کو جو ہے وہ آپ کبھی بھی کسی بھی طور پر اگنور نہیں کر سکتے. وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص ہمارے پاس موجود ہے. شارق علی شارق ان کا نام ہے. ینگ جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں, اور بڑے عرصے سے یہ جو ہے وہ میڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں, اور مختلف طریقوں سے ہمیں وائرل ہوتے بھی نظر آتے ہیں. سو یہ بھی اعزاز جو ہے ان کے پاس ہے کہ وائرل ہونے کا بھی ڈھنگ ان کو آتا ہے. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ کیسے وائرل ہوئے تھے, اور پھر یہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے تھے, اور کیوں وہاں پہ ڈکٹیشنز دے رہے تھے, کن کے اشارے پر یہ وہاں پر گئے تھے, اور کیا کیا جو ہے وہ گل کھلا رہے تھے. سبھی جانتے ہیں شارق علی شارق کی زبانی. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کن کے اشاروں پہ. اچھا تھا یہ, بڑا مطلب خفیہ سا تھا. لائک آپ مائک بھی میں بات بھی کر رہے ہیں, اشارے بھی کر رہے ہیں. اصل میں مائک پہ تو میں نے ایک ہی بات کی تھی, وہ آخر میں یہ تھی کہ مجیب الرحمان شامی صاحب وہاں موجود تھے, انہوں نے سوال کیا, تو میں نے مائک پہ پھر یہی کہا کہ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس سینیورٹی لیول پہ ہیں کہ ان کے بعد کسی کا سوال کرنا بنتا نہیں. بہت زیادہ سوال کرنے والے وہاں صحافی دوست موجود تھے, تو میں نے صرف یہی مائک پہ کہا. اور باقاعدہ طور پہ جو اشاروں کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق جرنلزم سے ہے. یوٹیوبر دوست ہیں یا پریس کلب کے جتنے دوست ہیں وہ سارے ہی کھڑے ہوئے تھے, تو وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے سوال کرنا ہے, کوئی کہہ رہا تو میں اس کہہ رہا تھا اچھا میں کہہ رہا تھا کہ عمر دراز گوندل صاحب کر لے, اس کے بعد ذہن امتیاز سوال کر لے, پھر یہ کر لے. مطلب میں لوگوں کو کوشش کر رہا تھا کہ ایک ماحول جو ہے نا وہ خوشگوار رہے, اور سب لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ سوال کر سکیں. ویسے تو 10-15 سوال ہوتے ہیں, وہی ریپیٹ کر رہے ہیں پہلے دن سے لوگ, لیکن میرا بیسیکلی یہ تھا کہ میں اگر کوآرڈینیشنس کو دیکھ رہا ہوں, چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جو انوائٹس تھے سب کو میں نے بھجوائے تھے, سب کو میں نے کوآرڈینیٹ کیا تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ جو لوگ آئے ہیں وہ سوال کر کے جائیں موسٹلی. اچھا, آپ جو ہے وہ صحافی ہیں, اور آپ بھی ایک سیاسی پارٹی کے قیام کے وقت بالکل رائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور بڑی امپورٹنٹ جگہ تھی کہ کوئی بھی اگنور نہیں کر سکا. جتنی بھی تصویریں وائرل ہیں, 2 ہی بندے لوکیٹ ہو رہے ہیں, یا اقرار الحسن صاحب یا شارق علی شارق صاحب. آپ کس حیثیت میں پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, یا کس کیپیسٹی میں آپ ساتھ کھڑے تھے؟ اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 2 ہی لوگ ہیں. اصل میں اور بھی لوگ کھڑے تھے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میری ویڈیوز پہلے بھی لوگ دیکھتے ہیں, تو اس لیے ذرا ٹارگٹ ہو جاتی ہے چیز, یا پوائنٹ ہو جاتی ہے, یا سپورٹ ہو جاتا ہے بندہ. دوسری بات آپ نے کیا, تو یہ پارٹی بالکل نہیں ہے, یہ ایک تحریک کا اعلان کیا, ایک تحریک کا قیام کیا, پارٹی کا قیام بالکل نہیں ہوا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پارٹی بنا لی اور اس پارٹی پہ ہم نے لوگوں کو, ہم نے ایک تحریک کا اعلان کیا. وہ تحریک اقرار الحسن صاحب یہ کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس تحریک میں اقرار الحسن از نو بڈی. لٹرلی اقرار الحسن از نو بڈی. میں, آپ, ہم سب جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک تحریک تھی کہ تمام نوجوان اپنی ایک پارٹی کیوں نہیں بنا سکتے. کب تک ہم یہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ابن وزیر اعظم یا وزیر اعظم بنت وزیر اعظم, اس طرح سے ہی چیزیں کیوں چلیں گی؟ بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر ہی کیوں آئے گی؟ نواز شریف کے بعد مریم نواز صاحبہ ہی کیوں آئیں گی؟ یہ سوالات ہیں. آپ یہی چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے تھے وہاں پر کہ نوجوانوں کا حق ہے وہ ایک پارٹی بنائیں. جو نوجوان ہیں ایک آئینی اور سیاسی جمہوری پارٹی بنائیں گے, الیکٹ ہو کے نوجوان آئے. یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیراشوٹرز ہمیشہ پارٹیوں میں نظر آتے ہیں. ایک جہاز اڑا, جہاز نے جا کر ایک مفرل کسی کو پہنا دیا اور آپ پارٹی میں آگے. اس طرح نہیں چاہ رہے ہم. اصل میں چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی بنے جس میں شروع سے لے کر اینڈ تک, ایک یونین کونسل سے لے کر وزیر اعظم تک تمام لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئیں. پارٹی کے اندر جو ہے جمہوریت ہونی چاہیے. یہ تمام پارٹیاں جو ہیں جمہوریت کی بات تو کرتی ہیں, لیکن کون سی پارٹی ہے ماسوائے جماعت اسلامی جس کے اندر جمہوریت ہو؟ کسی بھی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتا, کسی بھی پارٹی کا چیئرمین تاحیات صدر کوئی بنا ہوا ہے. تو یہ چیزوں کو ہم نے کوشش کرنے کے لیے ابھی تحریک کا اعلان کیا ہے, پارٹی کا اعلان ہونا بھی باقی ہے. اچھا, آپ نے تحریک کا اعلان تو کر دیا, سارے ہی صحافی آس پاس کھڑے تھے, کوئی کسان تو وہاں موجود نہیں تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ صحافیوں کی ہی تحریک کہلائی جائے گی یا اور بھی لوگ ہوں گے؟ ابھی دیکھیں, ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, پریس کانفرنس میں تو کسان نہیں آئیں گے نا, پریس کانفرنس میں تو صحافی آئیں گے, صحافیوں نے ہمارا موقف لینا ہے, اس لیے وہاں صحافی موجود تھے. جب ہم ممبر شپس کریں گے, جب ہم کیمپس لگائیں گے, جب ہم
डोर टू डोर जाएंगे, जब हम सिटी टू सिटी जाएंगे, जब हम सूबे से बाहर निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान का टूर करेंगे, फिर किसान भी हमारे साथ होगा, फिर एक तरखान भी हमारे साथ होगा, एक रेडी बान भी हमारे साथ होगा, एक बस का कंडक्टर भी हमारे साथ होगा, एक पैदल चलने वाला और एक साइकिल रखने वाला, तमाम लोग हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। अगर ये वाकई ही आम इंसान, आम आदमी की तहरीक है तो आप ये मायूस ना हो, आप बेफिक्र ना हो, इंशाल्लाह आप देखेंगे तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, अब आपकी बात करते हैं कि आपकी उन तस्वीरों को लेके बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनाई गई हैं और बहुत सारी बातें की गई हैं। सबसे मजेदार थी जब किसी ने मेरी तस्वीर के ऊपर जनरल बाजवा की लगा दी, उस पर थोड़ा सा हुआ यार किस बंदे के साथ मिला दिया, लेकिन खैर अब देखिए कर रहे हैं अभी। इतने ज़्यादा साफ़ी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे इकरारुल हसन साहब के आसपास दाएं बाएं कि जो आपके झंडे में जर्द रंग आया है, तो बाद लोगों ने ये ठट्ठा उड़ाई कि ये जर्द सहाफत की नुमाइंदगी कर रहा है। क्या ऐसा ही था? जर्द तो नौजवानों की और होप की जो है वो नुमाइंदगी करता है, और ये झंडा जो हमने बनाया है, अभी तक ये पार्टी का झंडा कोई नहीं है। कुछ लोग ईमेल्स भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशंस को भी कह रहे हैं कि ये झंडा जो है वो तरक्की का झंडा है, जिस तरह से नहीं, ये एक झंडा सिर्फ एक तहरीक का झंडा है, और तहरीकें जब शुरू होती हैं तो उसमें लाल रंग का बड़ी अहमियत होती है, लेकिन ये इंस्पायर्ड बाय तरक्की है कि तरक्की में आप देखते हैं प्रोग्रेसिव भी है और इस्लामिस्ट भी है, वो इस्लाम के बगैर भी नहीं चलते और प्रोग्रेशन को भी देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव भी होना चाहिए, और लेकिन जो हमारी बेसिक है, हमारी जो इक़दार है, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। जर्द रंग किसका है? जर्द रंग आपको बताया नौजवानों का है, जर्द रंग होप का है, सहाफत का नहीं है। बाकी सहाफ़ी हो या वकील हो या किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सब सियासत कर सकते हैं यार, किसी का भी हक है। इंडिया में आप देखते हैं, इंडिया के बहुत बड़े बड़े नामवर अदाकार हैं जो सियासत करते हैं, सहाफ़ियत सियासत करते हैं। सियासत आप सबका हक है। ये कह देना है कि भाई शरीफ बंदे तो काम भी कोई नहीं सियासत से, सबसे बड़ी मिथ ये है। इस मिथ को ख़त्म करना चाहिए। भाई आप अगर नहीं आएंगे सियासत में शरीफ लोग, तो किस दिन फिर सियासत में शरीफ लोग आएंगे? कौन है जो इस सियासत का जो है रुख बदल देगा? अच्छा, आपको जो है जब ट्रोल किया जा रहा है कल से, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो वो नौजवान है जिसने शोहरत ही इमरान खान के घर से हासिल की है, और अब यहाँ पे ये खड़ा है, वहाँ पे एंटी इमरान खान बातें हो रही हैं, तो लोग ज़ाहिर सी बात है रगी देंगे। तो इस हवाले से आप जो है वो क्या राय रखते हैं? सबसे पहली बात तो ज़ाहिर भाई ये देखिए कि ये एंटी इमरान खान बात नहीं है, ये बात सबकी एंटी है, ये किसी एक पे नहीं है। लेकिन चोट की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो सकती है, हर बंदा अपने आप पे ले रहा है। नवाज शरीफ जरदारी का नाम तो नहीं लिया भाई? लिया है। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, नवाज शरीफ का भी नाम है, जरदारी का भी नाम है, अच्छे लफ्जों में, दीगर नहीं, किसी का भी अच्छे लफ्जों में अच्छे लफ्जों में किसी का नाम नहीं है। लेकिन आप देखें कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा, एक वर्ल्ड वाइड उनका चाहने वाले मौजूद हैं, पॉपुलर लीडर हैं, तो वो सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, और वो हर चीज़ को जो है ना वो उस पर जाके जो है ना वो लगा देते। वही बात है, वो एक लतीफ़ा राहिद इंदौरी साहब ने सुनाया, आपने सुना होगा। राज साहब कहते हैं कि हम एक मरतबा नारे लगाते थे वज़ीर आज़म चोर, वज़ीर आज़म चोर, तो पुलिस ने पकड़ लिया। हमने कहा हम तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कह रहे हैं। पुलिस कहने लगी सानू जी में पता नहीं। तो पीटीआई वाले भी जो है ना वो अक्लमंद दुश्मन जो है बेहतर है बेवकूफ़ दोस्त से, ये खुद बता रहे हैं। इमरान खान की बात हो रही है, मतलब वो अगर कोई ऐसी बात की जाती है, हम कोई ऐसी बात करते हैं कि किसने पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ किया, किसने इस्टेब्लिशमेंट से फ़ायदा लिया, ये तो ओवरऑल एक बात हो रही है। लेकिन जाके इमरान खान पे जोड़ देते हैं कि इमरान खान पे तनकीद हो रही है। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि फेम की, तो मैं कोई कटोरा लेके किसी के घर नहीं गया भाई इमरान खान के नाम पे दे दे बाबा इमरान। भाई देखें, आप जब अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए बात होगी, कोई आपका मुखालिफ अच्छी बात करेगा तो उसकी बात होगी। हमने किसी की बैत नहीं की हुई, हमने किसी से निकाह नहीं कर लिया कि हर अच्छी बुरी उसकी जो है ना बर्दाश्त होगी। भाई पार्टीज हो, नज़रियात तब्दील होते रहते हैं। लोगों को आप ये मान लें कि कोई भी इंसान मनसूस मिनल्लाह है, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, या इकरारुल हसन हो, या मैं हूँ, हम सब मनसूस मिनल्लाह नहीं है। हम सब इंसान हैं और हम सब गलतियाँ कर सकते हैं। तो जब मैं गलती करूं तो आप मुझे टोकिएगा, मेरी मुखालफत कीजिएगा। तो ये नहीं है कि इमरान खान की मैंने बैत की हुई है और मैंने कहा जी इमरान खान का एक बुत तराशा और उसी की मैंने परस्तिश करनी है, ऐसा नहीं है। लोग ये कर रहे हैं कि शख्सियत परस्ती करते हैं। मतलब आप खान साहब को भी पसंद करते हैं? बिल्कुल। इमरान खान की कौन सी बात है जिसको मैं नापसंद कर रहा हूँ? अच्छी भी है, बुरी भी है। बुरी ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आए थे। बुरी ये है कि जब तक वो बैठे रहे इक़्तिदार में रात 12 बजे तक, तब तक नहीं उन्होंने कहा कि मेरे सारे फैसले बाजवा लेता था। जब वो गए तो उन्होंने बताया कि सारे फैसले बाजवा लेता था। आप खिलाफ हो गए? आप जब बाजवा ही सारे फैसले लेता था, तुम आंबल वज़ीर आज़म बड़े हो। Then for what? इतने बेबाक ना हुआ करें। Then for what? देखे ना, then for what you are a prime minister ना। आप मतलब कहते थे कि मैं नौजवानों को आगे लेकर आऊँगा, फिर आप किस नौजवान को लेकर आए? शेख रशीद को। वही शेख रशीद जिसे आप एक शो में कहते हैं कि मैं इसे चपरासी नहीं रखूँगा। आप ये चीज़ें देखें कि जिस तरह से आए थे हम भी उनके साथ थे।
लेकिन जिस तरह से गए हैं वो आप सबके सामने। एक और जो है वो ट्रोलिंग आपको जो चल रही है वो ये कह रहे हैं लोग कि जिस तरह इमरान खान के साथ असद उमर साहब थे, पहले दिन से साथ साथ खड़े खड़े नजर आते थे, तो इकरारुल हसन के पहले दिन से ये ऐलान से आप साथ असद उमर वाली कैपेसिटी में खड़े हैं। देखिए जी, मैं इकरार के साथ पिछले 8 कुछ तो पर्दे उठाइए। एक साल से मैं इकरार के साथ जो है ना वो बसता हूँ और उनके साथ मेरा एक ताल्लुक है टीम सरेआम की वजह से। टीम सरेआम जो है मुख्तलिफ फलाई काम करती रही है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेसिडेंट मॉडल टाउन रहा हूँ। मेरी इकरार से कोई जो है ना ओवरनाइट शनासाई नहीं है। 8 साल से मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत से अच्छे काम किए हैं हमने, बहुत से सोसाइटी में जो अपनी कैपेसिटी पे काम हो सकते थे किए हैं, लेकिन वो एक अच्छी बात लेकर चला है। मैं ये कहता हूँ इकरार को क्यों डिस्कस करना है, मुझे क्यों डिस्कस करना है, नज़रिए को डिस्कस करें ना। बात तो ये हो रही है कि भाई नौजवान का हक है कि वो सियासत करे, नौजवान का हक है वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं शेख रशीद का हक है, नहीं 80 साल किसी बाबे का हक है। अबे बस करो, जाने दो, अब क्या करना है, इन बुजुर्गों से क्या लेना है। ये इर्तिका का चलन है कि हर ज़माने में पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। इस वक्त नौजवानों से लोग डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं कि यार नौजवान कहीं वाकयातन आ ही ना जाए मैदान में, नौजवान कहीं कर ही ना लें सियासत। नौजवान का हक है सियासत करना। अगर नौजवान नहीं समझेगा तो इसी तरह होगा, कोई ना कोई आता जाएगा और कोई वो इलेक्टेबल्स को लाकर पार्टी बना लेगा। मतलब जब तक फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में था बुरा था, जब तक पीटीआई में आया तो ठीक हो गया। जब तक वो लोग अलीम खान इस पार्टी में थे, जहांगीर तरीन इस पार्टी में थे, ठीक है, उन्होंने अपनी इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाई तो बुरे हो गए। आपने मैार क्या रखा होगा पीटीआई के अंदर आना। पीटीआई अल्लाह माफ कर कोई खैमा हुसैन नहीं है जिसके अंदर आएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, हुर हो जाएंगे। नहीं, पीटीआई एक सियासी जमात है, उसमें भी अच्छे और बुरे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बात बता रहा हूँ कि हमने किसी को मनसूस मिनल्ला नहीं माना। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा करेगा उसको बुरा कहेंगे। शौकत खानम इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट, उस पर बात होती है। सेहत कार्ड पे इमरान खान ने काम किया, उस पर बात होती है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान में और बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इमरान खान ने किए, उस पर बात होती है कि वो अच्छे हैं। कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि शौकत खानम बुरा है, इमरान खान प्रोजेक्ट। लेकिन ये सियासत के अंदर इमरान खान साहब जब आए तमाम देर वो रहे, जब चले गए तो उन्होंने बताया तमाम फैसले तो बाजवा साहब करते थे। इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान दोबारा आएगा तो कोई और बाजवा फैसले नहीं करेगा। वैसे छोड़ें बाकी बातों को, ये बताएं कल से आप वायरल है माशाल्लाह, हर तरफ हर सोशल मीडिया फोरम पे छाए हुए हैं, शोहरत का मजा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, और ना हमें उस आज़ा ने पहले ही बताया था कि ये जो लोग कहे ना कि तुसी बहुत मशहूर हो, बहुत स्टार हो, इनकी बातों में ना जाइएगा। ये तो हमें बात करते हैं हम। कल भी ऐसे ही सादा, कल भी आपने मुझे फ़ोन किया तो मैंने आपका फ़ोन वैसे ही उठाया जैसे पहले उठाता हूँ। पहली रिंग पे, पहली बेल पे हम फ़ोन उठाते हैं। तो रही बात ये शोहरत की, तो पहली मरतबा, और ये जो बात कर रहे हैं ना लोग इमरान खान, इन लोगों ने शायद औरत मार्च वाली मेरी वीडियो नहीं देखी जो 100 मिलियन प्लस जिसकी व्यूअरशिप है। मुझे जो लोग जानते हैं बेसिकली वो औरत मार्च की वजह से जानते हैं, इमरान खान की वजह से कम जानते हैं। और रही बात इमरान खान की, तो जब वो अच्छा करते हैं तो हम अच्छा कहते हैं, जब वो बुरा करते हैं तो बुरा कहते हैं। आप बतौर सहाफ़ी क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए इंसान को जब उसके पास खबर आती है? अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना क्या मुश्किल है इसमें? हमने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, हमने किसी की बैत नहीं की। अच्छा करेंगे गुड है, बुरा करेंगे तो बैड है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक अली शारिक साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। तो नाज़रीन, ये थे शारिक अली शारिक, जिनके चर्चे कल से सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, जिनको इकरारुल हसन के दाएं तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, और इसी बात पर इनको ट्रोल भी किया गया पीटीआई के फैंस की तरफ से। सो इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी आपने सुन ली। अपनी जो राय का इजहार आपने करना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।